welcome back, guys. Today we are going to see hookworm infections. We are going to study in the same way as we studied in the previous video, that is classification, epidemiology, clinical feature, pathogenesis, treatment, and everything. Hookworm infection causes iron deficiency anemia, that is children and in pregnant women. It is a soil transmitted helminth. Classification: hookworm is present in both humans and in animals. We will mainly see human hookworm parasites which are present in humans. Human, that is Ancylostoma duodenale and Nectar americanus. Ancylostoma duodenale is also known as old world hookworm, and Nectar americanus is known as new world hookworm or American hookworm. Next, in animals, Ancylostoma brasiliensis, caninium, and these three types are present. We are not concerned with those animal forms. Next, epidemiology. Globally 900 million people are infected with the hookworm, and Necator americanus cases are more than Ancylostoma. In India, there are 200 million patients, and in North, Nectar americana is present more in South India, and Ancylostoma duodenale is present more in North India. Heavily infected regions of hookworm are Assam, West Bengal, Bihar, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra, and Kerala. Next, we will go to the epidemic index. Epidemic index is also known as here is by Chandler's index. This index is used to estimate the mortality and morbidity in a community due to hookworm. मतलब इस हुक्म की वजह से जितने लोग बीमार हो रहे हैं और जितने लोग मर रहे हैं वो कैलकुलेट करने के लिए कैंडलर्स इंडेक्स यूज होता है. नेक्स्ट, मॉर्फोलॉजिकली इट इज़ इन 3 फॉर्म्स, दैट इज अडल्ट फॉर्म, लार्वे फॉर्म एंड एग. लार्वे फॉर्म हैज़ 4 stages, L1, L2, L3 and L4. Next, this hookworm is a nematode and it is a parasite. Next, Ancylostoma and Necator americanus can be distinguished by adult worm and the L3 stage of the larva. मतलब ये Nectar americanus और Ancylostoma इतने सिमिलर दिखते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है और उनको सिर्फ अडल्ट वर्म और L3 स्टेज लार्वा के थ्रू ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. Ancylostoma duodenale 7 to 13 mm लॉन्ग एंड बेंट इन द एंटीरियर एंड. एंटीरियर एंड में बेंड होने की वजह से इसको हुक्वर्म कहते हैं. एंड देर इज बकल कैप्सूल विद द टीथ और कटिंग प्लेट एट द एंटीरियर एंड एंड पोस्टीरियर एंडल दे हैव copulatory bursa which help in fertilization. There are two important larvae former. L1 stage larva is known as rabidiform larva and L3 stage is known as filariform larva, and L3 stage filariform larva is an infective stage. Next, we are going to see the life cycle of this parasite. Life cycle, only one host is present, that is human, and infective form is L3 stage larva. Then mechanism of transmission, penetration to the skin by L3 stage larva. By it releases hyaluronidase and proteolytic enzymes and penetrates to the skin. It causes mainly to the farmers because they work more in the barefoot in the dampened soil. And first is migratory phase. In migratory phase, these larvae penetrate the skin and go to the subcutaneous venules, and there they travels to the lungs, and then to the alveolar space, then to the pharynx, and from pharynx we will swallow by aspiration and sputum, then they enter the GIT. Next is intestinal phase, where the L3 stage larva molt twice in the small intestine and become adult, and attach to the mucosa by its teeth. And following the fertilization, female worms lay eggs and go into the feces. मतलब सिंपल है, पहले L3 स्टेज लार्वा स्किन पेनिट्रेशन करके सबक्यूटेनियस वेन्यूल्स में आता है. वेन्यूल्स के थ्रू हार्ट से पंप होकर पल्मोनरी आर्टरी से सीधा लंग्स में जाता है. लंग्स में जाने के बाद वहाँ पे थोड़ा अल्वेलर स्पेस में थोड़ा ग्रो करता है. फिर वो पैरासाइट हम फैरिंग्स के थ्रू एस्पिरेट कर देते हैं, और एस्पिरेट करने की वजह से अब वो पैरासाइट हमारे GIT में आ जाता है. अब इंटेस्टाइनल फेस GIT में चालू हो जाता है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, वेयर दिस L3 स्टेज लार्वा अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. अडल्ट फॉर्म में भी मेल और फीमेल दोनों रहते हैं. अब लड़का लड़की दोनों साथ है तो वही करेंगे, उनको जो करना चाहिए था फर्टिलाइज करके फीमेल एग्स दे देते हैं. Ancylostoma duodenale gives 25,000 to 35,000 eggs per day, and Necator americanus gives 6,000 to 20,000 eggs per day. Next, development in the soil. एग्स आर इमेच्योर, मतलब जो फीसिस में जो एग है वो अनएम्ब्रियोनेटेड होता है, और मॉइस्ट सॉइल में आने की वजह से वो एम्ब्रियोनेटेड हो जाते हैं. नेक्स्ट, दे कन्वर्ट इनटू L1 स्टेज लार्वा, देन L2 स्टेज लार्वा, देन L3 स्टेज. मतलब 2 बार मोल्टिंग हो जाता है. देन दिस L3 स्टेज लार्वा अगेन इन्फेक्ट द ह्यूमन बाय स्किन पेनिट्रेशन. नेक्स्ट, आप पैथोजेनेसिस की तरफ जाते हैं. पैथोजेनेसिस इज बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू सक द ब्लड. They in the intestine they make cut to the intestinal wall, and they secrete hydrolytic enzymes, and they release anticoagulants, which leads to continuous oozing of the blood, and they get nourished through it.
Encephalostoma is more pathogenic than Necator americanus because encephalostoma is of large size and armed with teeth, and it is more migratory than Necator americanus. Next, encephalostoma duodenale sucks 0.15 to 0.26 ml per worm per day. Means एक वर्म इतना ब्लड मतलब 0.15 to 0.26 ml ब्लड सक करता है, एंड नेकेटर अमेरिकानस सक्स 0.03 ml per worm per day. The skin penetration is caused due to proteolytic enzyme cell hyaluronidase released by this parasite. And after coming into the intestine, there is a Th2 response. Th2 means there are Th means T helper cells, and there is increased antibody formation. The antibody, you know that IgE antibody is increased in allergic reaction and helminthic infections. As it is a helminth, there is increased level of IgE antibody. Next, we will see clinical features. Clinical features means those features which we will see in the patient. अफेक्ट बाय द माइग्रेटरी लार्वा, मतलब लार्वा वेन्यूल्स के थ्रू लंग्स की तरफ जा रहे हैं, मतलब माइग्रेटरी फेस में हमको क्यूटेनियस लेशन और प्यूरेटिक मैकुलोपैपुलर डर्मेटाइटिस एंड रैशेस एंड ग्राउंड ईच दिखाई देते हैं, और वो सर्पेंटेजिनियस ट्रैक्स मतलब सांप की तरह रहते हैं, तो आप उधर देख सकते हो. एंड लंग में जाने के बाद वो कॉज करते हैं माइल्ड ट्रांसिएंट न्यूमोनाइटिस. फिर बाद में हमको एस्पिरेट करके इंटेस्टाइन में ले जाता है, वहाँ वो अडल्ट फॉर्म में हो जाता है. अडल्ट फॉर्म में वर्म लोड मतलब जितने बैक्टीरिया है, जितने अमाउंट के बैक्टीरिया उसको वर्म लोड कहते हैं. वहाँ अर्ली स्टेज में तो ये असिम्टोमेटिक रहता है और इसिनोफिलिया, एपिगैस्ट्रिक पेन एंड डायरिया. अर्ली इंटेस्टाइनल फेस में इसिनोफिलिया, एपिगैस्ट्रिक पेन एंड डायरिया दिखाई देता है. लेट इंटेस्टाइनल फेस में हैवी वर्म लोड मतलब ज़्यादा पैरासाइट आने की वजह से वो ज़्यादा ब्लड सक करते हैं, वो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कॉज करता है. एंड देन प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, दिस लीड्स टू इंक्रीज ब्लड लॉस, वीकनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब कम ब्लड है तो कम ऑक्सीजनेशन होगा, इसलिए शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है. Next, Wakana disease. Wakana disease is caused to L3 stage larva of Encephalostoma duodenale is ingested by oral route and migrate to the pharynx and develop in the adult in the intestine. मतलब skin penetration through के नहीं but oral route के through Encephalostoma duodenale infection cause करता है. Therefore, GIT and pulmonary symptoms are seen, that is nausea, vomiting, cough and dyspnea. This disease is not seen in Necator americanus because L3 stage of Necator americanus fails to develop after ingestion. नेक्स्ट लैब डायग्नोसिस की तरफ चलते हैं. स्टूल माइक्रोस्कोपी करते हैं क्योंकि स्टूल में अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स दिखाई देते हैं. दैट इज ओवल, नॉन बाइल स्टैंड, कलरलेस इन अ सलाइन माउंट. इधर डायग्राम में देख सकते हो जहाँ पे एक्शल है और स्पेस है और बीच में ब्लास्टोमेयर्स है. 4 to 32 ब्लास्टोमेयर्स रहते हैं वो में, एंड फ्लोट्स इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. हम इन एग को एग काउंटिंग करते हैं नंबर ऑफ एग्स पर ग्राम ऑफ द स्टूल. डब्ल्यूएचओ ने कहा है इंटेंसिटी ऑफ द एग काउंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसोसिएटेड मॉर्बिडिटी. जितने ज़्यादा पैरासाइट्स होंगे उतना ज़्यादा डिसीज होगा पेशेंट. मेथड्स है काटोकाज टेक्निक, डायरेक्ट स्मीयर मेथड ऑफ ब्रीवर, देन मॉडिफाइड स्टॉल्स डाइल्यूशन एग काउंट मेथड. अब दूसरा मेथड है हम स्टूल कल्चर करते हैं, मतलब इन लार्वेस को ग्रो करते हैं. फ्रेश स्टूल कलेक्ट करते हैं, कल्चर करते हैं. L3 स्टेज लार्वा कल्चरल मीडिया में अवेलेबल होता है 5 to 7 डेज में. मॉडिफाइड अदर कल्चरल मीडियाज देखो, हरदा मोरी फिल्टर पेपर ट्यूब मेथड, बेयरमैन फनल टेक्निक, चारकोल कल्चर मेथड एंड अगर प्लेट टेक्निक. ये टाइप्स है कल्चर्स के. नेक्स्ट मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, हाँ वही है PCR और RT-PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. RT-PCR इज मोर एफिशिएंट बिकॉज इट इज स्पीसीज स्पेसिफिक, मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकता है एंसेफेलोस्टोमा ड्यूओडेनले एंड नेकेटर अमेरिकानस. एंड इट इज़ मोर सेंसिटिव, इतना सेंसिटिव है कि वो एक कॉपी पर 200 मिलीग्राम ऑफ स्टूल को आइडेंटिफाई करता है. मतलब एक पैरासाइट 200 मिलीग्राम स्टूल में है तो वो आइडेंटिफाई कर देता है. अदर फाइंडिंग्स क्या देखने को मिलता है? हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया, इसिनोफिलिया मतलब इंक्रीज इन एसिनोफिल काउंट, एंड हाइपोअल्बुमिनिया बिकॉज प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन हो रहा तो अल्बुमिन काउंट कम होगा तो इसलिए हाइपोअल्बुमिनिया दिखता है. प्रिवेंशन, ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन ए क्यूर, दैट इज इम्प्रूव्ड हाइजीन, मतलब बाहर शौच नहीं करने का. नेक्स्ट प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द फीसिस एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड डाइटरी आयरन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शन. नेक्स्ट ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं. Antiparasitic drugs, that is albendazole and mebendazole are used. Albendazole 400 milligram once and mebendazole 500 milligram per once, and parental pamoate 11 milligram per kg for 3 days. ये एंटीपैरासिटिक ड्रग्स है, बट एक बात गौर करने की है तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट दिस ड्रग्स हैज़ बीन रिपोर्टेड. नेक्स्ट है हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही दे सकते हैं, दैट इज़ माइल्ड आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो रहा है तो हम ओरल आयरन सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, ओरल आयरन एंड फोलिक एसिड. नेक्स्ट सीवियर हुकॉम डिसीज विथ प्रोटीन लॉस एंड माल अब्जॉर्प्शन,
देयरफॉर हमको न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना पड़ता है। नेक्स्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देख सकते हो। STH इन्फेक्शंस मतलब सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ इन्फेक्शंस। नेशनल डी वार्मिंग डे 10 फरवरी और 10 अगस्त। ए सिंगल डोज ऑफ अल्बेंडाजोल इज गिवन टू 1 to 19 ईयर्स चिल्ड्रंस। WHO एक सपना देखता है 2030 आने तक ये एलिमिनेट हुकवर्म इन्फेक्शंस को एलिमिनेट करने के सपने देखता है। तो गाइस यहीं पे हमारा वीडियो ख़त्म हो जाता है। तो आई होप यू एवरीवन अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स। तो वी विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।